कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी। मोगा पुलिस और जिला प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिली। प्रशासन की तरफ से एक विशाल स्टेडियम को आर्जी तौर पर जेल बना दिया गया। डीसी साहब ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾਏ, ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਸਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ। ममता बनर्जी ने नए विधायक के साथ की बैठक, कहा अभी नई सरकार का सबसे बड़ा काम है कोरोना वायरस को खत्म करना। Anyhow, Mamata Banerjee is to be defeated. What is this? They cannot stop me. Even I am telling you, they have got 78 some seats. Even they should not cross 50. It is because of Election Commission's contribution. And I am happy today Supreme Court also sticked the judgment of the Madras High Court. It's very good. Sometimes the judgment, yes, justice. Only people want justice. Justice is the main thing, main pillar of the democracy. And if Supreme Court, High Court, all the lower courts, they work for people, people get justice. They always depend on court. थैंक यू। तुम लोग तो पहले से ही बोल दिया था कि हम लोग 115 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा बोलो। इतना ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। आई डोंट लाइक एनी वायलेंस और एनीथिंग, बट व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। हम तो रैली ही नहीं किया है। आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मानुष को धन्यवाद लगाओ, धन्यवाद दाओ सबाइके। रविंद्रनाथ ठाकुरेर जन्मदिने, रवि ठाकुरेर जन्मदिने, विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुरेर जन्मदिने আমরা সংহতি সম্প্রীতির শপথ নিই। বাংলার সংস্কৃতি উজ্জ্বল করব আমরা। বাংলা আবার বিশ্ব বাংলায় নাম লেখাবে নতুন করে, নতুন ভোরে। সেই জন্য আমরা সবাইকে বলেছি। रानीगंज थाना क्षेत्र में धमानिया कुपारी ईटा भट्टा के पास मकई के खेत में शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही रानीगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गांव में मचा हाहाकार। ये लाश कहाँ पे मिला सब आपको? मक्के खेत में। तो कितना दिन पहले से मतलब? बृहस्पति का रात से लहास हरेले बाप। अच्छा, एक और सूचना कहीं दिला रहे कि दिलिए रानीगंज थाना में? हाँ। थाना खोजबीन कर लगे ना? कल कह कि कल रिपोर्ट दाखिलिए, आज अले तो आज लहासो मिले, आदमी लाश ये मिले ना? हाँ। तो पहले से कहीं से कोई झंझट दुश्मनी?
दुश्मनी वहीं से वह जमीन की ना एकरा ई रहे वाला छे छतियाना के ते जमीन के रंग के लेते नहीं देवे। अरे प्रमोद तो कौन चीज कहे छे प्रमोद का कहल के हमार कि जमीन जब कि खुदन ऋषिदेव का नाम से निकल 64 डिसमिल तब बाबाजी कहने न देव तो उ सब बोले छे कि ना बाबाजी का नहीं देवे। बाबाजी कौन चीज कहे छे ओकर बेटा नहीं छिए तो कहे छे कि तो जाने छ कि ओकर बेटा नहीं छिए जे कि इतनाटा से ओकरा पोसलकै अथी जलम देलकै सब कर्म क्रिया करलकै तो उ बेटा ओकर नहीं छिए तो केकर छिए। किससे था जमीन लेके झंझट? झंझट रहे जाकर ओकर राजेश राम से। राजेश राम से? हाँ राजेश राम लंग जमीन रहे लागलो। कै बजे घटना मिला लाश? वहाँ से आज मिलले 12 बजे 1 बजे की नाम मिला था? नीतू देवी। नीतू देवी। ये तार पापा के नाम मिला? पापा के नाम एते सब छतिया नाम बोले छे बाबूलाल ऋषिदेव। अच्छा। और टेढ़ी मुसहरी में बोले छे कि बाबाजी सब के छे खुदन के बेटा बाबाजी छिए। इनका उम्र कितना था? बाप का हमार उम्र देखिन ना कितना छे। हमर बाप तो बूढ़ हो गए। बुरा ना? ठीक। हाँ 50 ठीक। साल। सत्या कहाँ पे मिली थी लाश? मकई खेत में। मकई खेत में। पहचान हुआ है इसका क्या? हाँ पहचान हुआ है। उसका बेटी है उनका लाश वाला का बेटी। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? श्रीनाथ पासवान। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में 25 रुपए के लिए बुजुर्ग की हत्या। पैसे की लेन देन को लेकर दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद। परिजन ने किया जमकर हंगामा। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा, जिससे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा। अस्पताल के द्वारा मरीजों को फर्श पर लिटाकर दिया जा रहा उपचार। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल जो है गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार का और आधे गढ़वाल का एक मुख्य केंद्र है। और यहाँ पर जो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आधा गढ़वाल इस हॉस्पिटल से ही संचालित होता है। तो मैं तो आज यहाँ पे स्थिति ये है कि मरीजों को जो है बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। मरीज नीचे फर्शों पे लेटे हैं और वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। इससे क्या है कि गंदगी के कारण और अन्य व्यवस्थाओं के कारण मरीज और बीमार होने को स्थिति में होगी। मेरा तो शासन प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि आप कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो खासकर इस कोविड महामारी के दौरान देखिए, कोविड महामारी पूरे देश में चल रही है, बहुत विकराल स्थिति में है। और यहाँ पर जो संसाधनों का अभाव है, डॉक्टर्स का अभाव है और जनता त्राही कर रही है। और कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और अभी कुछ तो जो प्रशासन और शासन का जन जागरूकता का भी अभाव है कि लोगों तक वो सही जानकारियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं कि हर बुखार, हर सर्दी जुकाम ही कोविड नहीं है। इसके लिए भी प्रशासन को जन जागरूकता का अभियान के रूप में लेना है। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अभी हम आए तो कह रहे हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है अभी। कितनी देर हो गई यहाँ पे? हमको तो अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं मॉर्निंग में पहले भी आ गई थी बताने, तब दोबारा घर गई, फिर लेके आई पेशेंट को। उन्होंने कहा ऑक्सीजन चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देर नहीं है? अभी तो ऑक्सीजन चढ़ाया है बस और इमरजेंसी में दिखाया डॉक्टर। नहीं, जिस कंडीशन में यहाँ पे अभी आपका मरीज लेटा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, तो इससे कोविड के दौरान कोई संक्रमण दोबारा बढ़ सकता है? अब बिल्कुल सफाई तो चाहिए। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने को लेकर लक्सर पुलिस कोतवाल के साथ एसएसआई ने पुलिसकर्मी को लेकर नगर में निकाला फ्लैग मार्च। बेवजह घूम रहे लोगों को नसीहत कर भेजा घर। एक्चुअली उत्तराखंड सरकार द्वारा आज से 12 बजे से कर्फ्यू लागू किया गया है आवश्यक सेवाओं को छोड़ के। कई लोगों को पता नहीं था, 4 बजे की वजह से लोगों को चल रहा था। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, कोविड के बारे में सचेत करने के लिए एक हमने
सोचा कि पद यात्रा के जरिए सारे पुलिसकर्मी हम लोगों को अवेयर करें और समय से जो दुकानें हैं वो बंद करने का आह्वान भी करें और लोगों से बचाव के लिए कहें और अच्छा मैसेज जाएगा, इसको सोचते हुए हम लोगों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया। नगर निगम रुड़की के इस्लामा नगर में पिछले 6 महीनों से जल भराव की समस्या, स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। पिछले लंबे समय से जल भराव की समस्या, ग्रामीणों में भारी रोष। मैं इस्लाम नगर का रहने वाला हूं मैं, और यह है हमारे नगर निगम का हाल। नगर निगम का हमारे जो है हमारे मोहल्ले वाले, हमारे पूरी बस्ती वाले इस टाइम महामारी से किस कदर जूझ रहे हैं, सबको पता है अच्छी तरह से। और ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से ये क्या हालात है, क्या मामला है। और इस तरीके का हालात जब हम ही लापरवाही करेंगे, हमारे मेयर साहब ही लापरवाही करेंगे, नगर निगम ही लापरवाही करेंगे, तो और क्या होगा। ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमारे ये जगह जा रहे हैं, किस तरह से उधर से आ रहे हैं, किस तरह से क्या मामला है। आप ही निर्णय लें, खुद ही आप फैसला करें। ये हमारी कहने से सुनने से क्या होगा, ये खुद ही आप अपने हिसाब से मामला करें। भी बनी तब भी हमने कहा कि यहाँ से आगे तक की करवा दो सके, नहीं आगे तक का हुक्म नहीं है। जब से हम परेशान है, पूरी सर्दी हो गई और पूरी बरसात हो गई, ये पानी नहीं बंद हुआ और कोई देखने को तैयार नहीं है। इन लोगों कुछ लोगों को कह दिया कि ये पानी अब निकल कर चले जा, निकल कर चले जा, लेकिन नमाजी आदमी भी बहुत परेशान है। यहाँ से चिंता लगेंगी कि कुछ होगा, और बच्चे भी गंद में पड़ कर बीमार हो गए। हमारे बच्चे गंद में पड़ कर बीमार हो गए, बहुत से तो यहाँ तक की हो गया कि कोरोना फैल रहा। हाँ जी, लापरवाही हो रही है इनकी। अब हमने बहुत कह लिया। हमारा तो ये है घर, हम तो बिल्कुल इसमें ही रह रहे घर में। तुम तो और कहीं के भी होंगे, हम तो बहुत परेशान हो गए। इस्लाम नगर मोहल्ला है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पानी को, और यहाँ पे इस कदर कोरोना महामारी का भी हालत बहुत ख़राब है, और उससे ज़्यादा बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है इस गंदगी की वजह से। रात दिन ये पानी भरा, कहीं इसकी निकासी नहीं है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा जी, और बहुत बुरा हाल है, और यहाँ पे महामारी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, किसी ने आज तक आकर नहीं देखा, और बहुत बार मोहल्ले वाले जाके कह भी आए और बहुत बार कह भी चुके, मगर कोई देखने वाला नहीं है नगर निगम से। हम मानते हैं कि नगर निगम तो बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं है। अगर और जल्दी ही इसका कोई निराकरण ना किया गया तो यहाँ पे दुनिया भर की महामारी फैलने का डर है। रुड़की में बहुत बुरा हाल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र में फैले वायरल से सतपुली क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को लिखा पत्र, कोरोना सैंपलिंग की लगाई गुहार। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सतपुली के संयुक्त राज्य के चिकित्सालय में हमने परमानेंट सैंपलिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी है। मेरा क्षेत्रीय जनता से यह अनुरोध है कि वो प्लीज़ आएं और अपना सैंपल कलेक्ट करवाएं। और मेरा कल तक हमारा लगभग 41 हमने सैंपल किए हैं। आज भी हमने लगभग 28 सैंपल लिए हैं। और कल का जो हमारा सैंपलिंग कैंप है वो APSC सतपुली में लग कर के नीचे इंटर कॉलेज में लगेगा। तो जो स्थानीय बाजार के व्यापारी हैं तथा सतपुली निवासी हैं वो अपना वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का पालन करें। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के कई क्षेत्रों में लगातार आगजनी और हिंसा की घटना सामने आ रही। क्षेत्र से बीजेपी नेता के घर तोड़फोड़।